The Jan Sunwai was conducted as a structured legal awareness exercise with 15 women, with the primary aim of creating a safe, confidential, and non adversarial space for discussion. Before addressing any legal issues, participants were made comfortable through informal interaction and clear assurance that the process was not investigative in nature and that any identity would remain protected. This approach enabled open and honest communication with the ASHA workers on issues that are often underreported. Cyberbullying and online harassment were explained as offenses under the Information Technology Act 2000 and relevant provisions of the IPC and BNS relating to stalking, criminal intimidation, and misuse of electronic communication. The reporting method was simplified for the participants. Complaints can be filed via EFIR facilities on state police portals or through the National Cyber Criminal Reporting Portal, supported by basic digital evidence such as screenshots, message records, and URLs, without immediate physical presence at a police station. Domestic violence was discussed under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which recognizes physical, emotional, verbal, sexual, and economic abuse. The relief provided under the Act is civil and immediate, including protection orders, residence rights in the shared household, and monetary relief. These remedies can be accessed through a protection officer, the District Legal Services Authority, or by direct application before the magistrate. Dowry related harassment was addressed with reference to the Dowry Prohibition Act 1961 and penal procedures concerning cruelty by the husband or the relatives. It was clarified that dowry demands made at any stage of marriage are illegal and punishable. Complaints may be lodged with the police, and overlapping relief can be sought where such conduct also constitutes domestic violence. The Johnson Y focused on simplifying legal procedures, identifying clear reporting channels, and reinforcing awareness of statutory rights. आप सभी को हम सबका नमस्ते। हम सब फैकल्टी ऑफ लॉ के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कॉलेज से आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। और हम फोर्थ प्रोफेसर वीएस मल्लार मेमोरियल लीगल एड कंपटीशन होता है जो एनएलएसआईयू बैंगलोर कराता है भारत सरकार के साथ में मिलकर। उसके लिए हम आपके पास जनसुनवाई और स्पीड मेंटरिंग, मतलब आपको 15 से 20 मिनट में उन सभी कानूनी प्रावधानों के बारे में बताने आए हैं जो कभी ना कभी आपके या फिर आपके जानने वालों के काम आ सकते हैं। तो अभी हम जनसुनवाई की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारे पास हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं, डॉक्टर योगेश मिश्रा सर एंड डॉक्टर अविनाश कुमार सर, और ये इस पूरी चीज़ का देखरेख करेंगे। साथ साथ हमारे पास अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रेखा रानी जी, जो यहाँ की निगम पार्षद भी है, वो भी हमारे संग आने वाली कुछ देर में, और अध्याशा। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा एक पहले ही बता चुकी हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं इस वार्ड के इस निगम के, और जितनी भी महिलाएं जो काम नहीं करती हैं या करती हों वो आपके ऊपर आपको देखती हैं कि आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, आपसे बात करने में कंफर्टेबल रहती हैं, बात करना पसंद करती हैं। तो हम आपको यहाँ यही सब समझाने सिखाने आए हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हो, उनके बच्चों के साथ ऐसे केसेस हों, चोरी चकारी डकैती के केसेस हों, तो वो आपसे आकर बात कर सकें और हम आपको सिखा सकें कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आप काम करेंगे। पुलिस के साथ बात करने में सब जो है संकोच करते हैं लोग पुलिस से बात करने में। हम तक उनको पता नहीं होता कि कैसे पहुंचे, हमारे नंबर नहीं होते, पर आप उनके घर के परिवार के लोग हैं, आपसे वो बात कर पाती हैं, तो हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे ताकि आप आगे जाकर उनसे बात कर सकें। कुछ सवाल प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप उनके अगर जवाब हमको दे सकें। पहली बात तो आपके एरिया में कोई भी डाउरी के स्त्री धन के केसेस आपको पता है पहले हुए हो या अब हुए हो, दहेज के केसेस, तो आप हमको बताएं। अब हुए, पहले हुए, जिस भी टाइम पर हुए हो, और उसका क्या परिणाम रहा, मतलब किसी के दहेज का कोई केस हुआ
किसी महिला के साथ कोई हिंसा हुई तो आगे उन्होंने किसको कंप्लेन किया, नहीं किया, क्या उसका परिणाम रहा, अगर आप हमें कुछ बता सकें इस बारे में। आप में से किसी की नज़र में ऐसा कोई नज़र में कोई केस आया हो तो आप बताएं। ऐसा कुछ सुनने में कभी नहीं आया? हाँ, मतलब आपके एरिया में ऐसा कोई केस नहीं है, पर वैसे आपके एरिया में दहेज का चलन है अभी भी? कहीं थोड़ा केस हो गया अब पानी है किसी के पास? धोखा करके ये राजेंद्र ने जिस जगह पर ही है चाचा तो को मगा था सारा ये किराए पे है रही उसके सोचना साइड मार रहे हैं सारा जो दहेज सब कुछ लगा रहे हैं मकान से ये लगाया था हमारी ये कहानी ये जब कोई कहानी चिढ़ते तो ये हाँ तो हुई है भाई भैया ने मतलब हस्बैंड के भैया ने उन्होंने साइन झूठे करवा के सारी जमीन हड़प ली। तो अब मैडम का घर वगैरह तो आपने मतलब कोशिश की ऐसी कि मतलब आप कभी जा पाए किसी वकील के पास या कुछ? मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया तो जब खुल गया मकान इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। नहीं, मगर फर्जी सिग्नेचर है और इन सब चीज़ों पे आप कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं सर। क्या मैटर था, आप अगर हमें बताएंगे क्या फर्जी सिग्नेचर करवा लिए, फर्जी सिग्नेचर करवा लिए और सारी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो ये बच्चे मेरा नंबर आपको दे देंगे, आप मेरे से बात करिएगा, दी बेस्ट एडवाइस भी मैं दूंगा और अगर कुछ मदद कर पाऊंगा तो मैं मदद भी करूंगा। जिनके ससुर के ना भाई थे हाँ तो उनको उनके इनके हस्बैंड को उनको दे दिए, वो वहीं पे आते थे हाँ। कमाते थे सब कुछ करते थे हाँ। शादी भी इनके घर पे यहीं पे हुई हाँ। तो जब शादी हो गई तो उन्होंने कहा बिल ना बहुत ज्यादा भी आता था हाँ। तो कुछ पैसे दे दो, मुझे भी पैसे भी देती थी उनको हाँ, अपने हाँ। जो जब बनाते थे तो एक जो था इसका जो आता था चीज वगैरह थी वो भी बेचारे चक्कर में लगाते थे, आज मैंने उधर का लोन लिया उधर का ये देना, मुझे पैसे दे दो, तो ये सारी चीजें अपने दे चुकी थे। लास्ट में उन्होंने सारा साइन करवा कर उनके हस्बैंड से ससुर से करवा के सारा मकान इन्होंने जब्त कर दिया उन्होंने। बैंक से लोन लेकिन आप पूरा फैक्ट्स बताना, ये तो मुझे लगता है कि आधा फैक्ट्स है, पूरा बताना तब फिर हमें समझ आएगा कि किस तरह के सिग्नेचर लिए, वो सब अगर चीजें क्लियर होंगी तब। जब आपका लोन जो कटना शुरू हुआ तो आपने किसी को लिखा कि ये लोन हमने नहीं लिया है? नहीं, अच्छा, हमने तो डेली में ससुर ने दिया। नहीं, पैसे किससे कटते थे? एक आध महीने 10 महीने कुछ कटे उन्होंने होंगे? हमारे किसी का उसका कैश ही लगने दिया, उसका कैश ले मतलब बस एक ही प्रॉपर्टी सील हुई है। नहीं, प्रॉपर्टी में कभी 4-5 लोगों का हिस्सा होता है ना। नहीं तो आप अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं अगर आपने लोन नहीं लिया है नहीं, हमने नहीं लिया। तो आप अपने हिस्से के लिए लड़ सकते हैं। वो पैतृक संपत्ति थी, हाँ तो पैतृक संपत्ति थी तो बैंक नहीं बेच सकती आपका शेयर। या तो इनके सिग्नेचर वगैरह हो गए होंगे सबके। नहीं भाई, हमारे लोन की वजह से बैंक ने बेचा है ना, तो लोन इनका नहीं था ना। एक साथ 10 आदमी के नाम से लोन नहीं हो सकता, मैक्सिमम वो अपने नाम से लिए होंगे, तो उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनका नहीं बेचा। आप मुझे ना पूरा तथ्य बताना, सब एक एक करके बताना लाइन बाय लाइन कि किस डेट को क्या हुआ, लोन लिया तो किसके नाम से लिया, और वो सब कागज निकाल के आप फिर मुझे दिखाना सब, तब जा करके मैं आपको बता पाऊंगा। पास में यूनिवर्सिटी है, वहां किसी दिन आप आ जाना ऑफिस में और फिर हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, इसके अलावा आप में से कभी भी किसी ने सुना हो या आप में से किसी ने फेस किया हो घरेलू हिंसा से रिलेटेड कुछ भी, या कोई हर औरत के साथ ऐसा कोई किस्सा जानते हो जहाँ पे अगर आप अपना नहीं बताना चाहते तो आपके आसपास जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो
तो क्या आप जानते हैं वो किसी के पास मदद के लिए जाते हैं, किसी को बताते हैं, या इसको अपने रोज के जीवन का एक हिस्सा मान के जी रहे एक गए थे जैसे थाने में भी गए थे, रिपोर्ट पर पुलिस वालों तो कोई वो घर का मैटर बोला अरे आप आपस में सुलझ लो। अगर किसी अगर आदमी किसी ने फ्रॉडुलेंटली अगर आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हाँ। वो आए नहीं थे और वहीं पे वहीं जो पुलिस वाले नहीं, लेकिन उस तरह के मैटर में अगर आप बाद में परस्यू करेंगे मैटर, बाद में अपने एडवोकेट को करके, और अगर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो कोर्ट में केस तब भी फाइल हो सकती है। पुलिस वाले एफआईआर नहीं करेंगे तब भी आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका गो टू, हमें जाने का यही पता होता है कि हमें फोन नंबर डायल करना चाहिए और हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पर एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी वकील के पास या किसी एनजीओ वर्कर के पास जाएं और बड़े अधिकारी के पास जाना। और फिर बड़े आपको अधिकारी के पास, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको पुलिस के बड़े अधिकारी से कनेक्ट करते हैं। और आपकी कोई जानकारी में ऐसा हो जो कि ये काम कर सकता है तो वो ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज हो। और वो सबसे इजी तरीका होता है, नहीं तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करना चाहते नहीं। और घरेलू हिंसा की केसेस में आप लोग तो फिर भी थोड़ा सा लॉ की जानकारी कम रखते हैं, हम लोग भी जानते हैं तो एफआईआर नहीं करते हैं। तो हम उनके बड़े अधिकारियों से बात करते हैं, अगर वो भी नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको डायरेक्ट करो कि एफआईआर करें। क्योंकि- और ये प्रक्रिया होती है 3 लेवल की। पहले आप थाना में जाओगे, उसके बाद उनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओगे जो यहाँ डीसीपी होता है, एंड अगर वो नहीं मानेंगे तब फिर आप जा करके कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे और कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी कि तुम एफआईआर करो और तब इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये 3 लेयर है, और अगर मान लीजिए कोर्ट में भी लोअर कोर्ट अगर नहीं मानती है तो आप ऊपर के कोर्टों में जाते हैं। क्योंकि यूजुअली इसमें कागज और उसका बहुत काम होता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि कहाँ सिग्नेचर करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, पुलिस वाला भी सही जगह करा रहा है नहीं करा रहा है, या फिर पढ़ने नहीं देते। तो ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान जो वकील हो या लॉ की ज्यादा जानकारी रखता हो वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ आज हिंसा हुई है तो आप महीने बाद 2 महीने बाद कभी नहीं जा सकते। आप कभी भी जब आपको लगे कि आपके पास उतनी ताकत है, हिम्मत है कि अब आप जा सकते हैं, आप तब जा सकते हैं। इसके और इस तो ऑप्शन ये है, आप सब फोन चलाना जानते हैं, आप सब अपना काम फोन पे करते हैं, ई-एफआईआर फाइल करिए सबसे पहले। बच्चों से बोल सकते हैं वो करने की इजी हो। अभी हम आपको मैकेनिज्म बता भी देंगे कि आपको ई-एफआईआर फाइल करनी है, आपको बस सिंपल टाइप करना है ई-एफआईआर दिल्ली पुलिस। ये खुलेगा, पहला सबसे पहली लिंक आती है, इसमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आएगी, ठीक है। इसमें जाके आपको अलग अलग तरीकों से रिलेटेड कि कोई आपके संग चोरी हुई है, उससे रिलेटेड उसी को क्लिक करेंगे। हाँ उससे रिलेटेड आप क्लिक कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको ये एफआईआर करनी है, तो आप वो क्लिक करेंगे और उससे आप जो भी समस्या होगी आप वो लिखेंगे और एफआईआर हो जाएगी। इसके अलावा और पिछले 1 साल की हम बात करें तो कोई भी ऐसे इश्यूज आपने फेस किए हैं लोगों से सुने, डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट के पर्टिकुलर? डोमेस्टिक वायलेंस भी है, सेक्सुअल भी है और साइबर भी है। फ्रॉड भी है। तो मैम जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है वो मेनली
जान पहचान के लोगों के होते हैं या कोई अभी जैसे मुझे लगता है शायद 15 दिन पहले की बात है, इसी रोड पे आगे जाएंगे ना कोंडा में, वो एक 6 साल की बच्ची के साथ 3 लड़कों ने गलत काम किया और वो तीनों ही माइनर थे, 11 साल का, 13 साल का और 16 साल का। और वो बच्ची मैंने सुना वो केस कि वो 13 साल के बच्चे को फिर सबसे पहले देखा था क्योंकि वो उसके पीछे भाग के आ रहा था और फिर पुलिस पकड़ के लेके गई ऐसा। तो जो सबसे बड़ा है 16 साल का वो गायब है, बाकी वो दोनों 11 और 13 साल के हैं, उनको क्या ही करेंगे। और वैसे वर्क प्लेस का भी कोई सेक्शुअल हरासमेंट का केस यहाँ आता है कि कोई कहीं काम कर रही थी उसके साथ उसी के एम्प्लॉयर ने करा हो ऐसा कुछ? ऐसा तो मेरे पास नहीं, ज्यादातर तो आसपास ससुराल के ही आते हैं, ससुराल वालों ने परेशान किया। एंड वैसे जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ आप लोगों से बात कर लेते हैं आकर के क्योंकि आप अप्रोचेबल हैं, या पुलिस के पास भी जाते हैं? पुलिस के पास भी जाते होंगे, लेकिन बट सबसे पहले कई बार हाँ महिलाएं, क्योंकि इजी हम लोग अप्रोचेबल है इसलिए, और महिला होने के नाते वो अपना। और उसकी सेटलमेंट कैसी रहती है कि मतलब कोर्ट का केस जाता है या इनफॉर्मली आपस में सेटल हो जाता है कि तो मतलब कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन फिर भी हम SHO या उनके जो भी पुलिस ऑफिसर उनके पास जाते हैं। और आपको मैडम, आपको तो खैर ये बातें पता ही होंगी, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, पॉश एक्ट वगैरह। विकास, आपकी सिस्टर का जो केस था क्या हुआ उसका? हो गया, सेटल हो गया? तो रह रही है वो ससुराल में? तो मैम वैसे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है, लीगल क्या प्रोविजंस है, उनको सेफगार्ड्स हैं या अवेयरनेस नहीं है? मोस्टली नहीं है। मोस्टली नहीं, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, मोस्टली नहीं है। एंड आपको सबसे पहले अप्रोच करती है लेडीज, कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है या आशा वर्कर्स को करती है? मतलब कौन रहता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? वैसे नॉर्मली जो फॉर्मल केसेस हैं जो बाद में पुलिस तक भी जाते हैं। मुझे नहीं पता जो मेरे पास आती है पहले किसके पास गई है, जो मेरे पास नहीं आई वो कहाँ, ये तो मैं नहीं कह सकती। एंड